हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम अगेन। आज हम बात करेंगे क्लास 10th के चैप्टर नंबर 3 में से एक्सरसाइज 3.6 के बारे में। दिस एक्सरसाइज टेल्स अस इफ टू गिवन इक्वेशंस अ पेयर ऑफ इक्वेशंस इज नॉट इन द लीनियर फॉर्म, मींस x और y की अगर पावर 1 नहीं है, then how we can convert them into the linear equations and then can solve those linear equations in two variables by any of the algebraic or geometric method. So let's have the example how we can convert any of the equation in the linear form and then can solve using the concept of pair of linear equations in two variables. So मैं एक example लेता हूं. We people are taking the example of exercise 3.6. I am taking the example of question number second part, which says that 2 by root x plus 3 by root y is equal to 2 and 4 by root x minus 9 by root y is equal to minus 1. Now here we can see that both these equations are not in linear form, because here the power of x is minus 1 by 2, the power of y is minus 1 by 2, similarly in these two. So what we have to do, we will start putting it. So we'll put 1 by under root x is equal to sum a and 1 by root y is equal to sum b. If I am writing this 2 by under root x, it means 2 into 1 by root x. So if I am putting 1 by root x as a, so it will become 2 into a, which is 2a. So we will write it as 2a plus 3b is equal to 2, and this equation will become 4a minus 9b is equal to minus 1. Now the easiest way to do it is 1 by substitution, 2 by elimination, 3 by cross multiplication. It depends upon you by which method you would like to solve it. बहुत सारे स्टूडेंट्स ज्यादा इजी और कंफर्टेबल फील करते हैं by doing it by elimination method. So मैं भी एक क्वेश्चन आपको एलिमिनेशन से, एक सब्स्टिट्यूशन से और एक क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से सॉल्व करके दिखाएंगे. सो इन दिस मैं इस क्वेश्चन को आपको लेट्स हैव दिस बाय द कंसेप्ट ऑफ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन. तो मैंने क्या किया, इस 2 को लेफ्ट हैंड साइड लिया है तो इट विल बिकम माइनस 2 इज इक्वल टू 0, और इस 1 को लेफ्ट हैंड साइड लिया है तो इट विल बिकम प्लस 1 इज इक्वल टू 0. And now we'll write a by, b by and 1 by. A by 3 into 1 is 3 minus 9 into minus 2 plus 18. B by minus 8 minus of 2 and 1 by minus 18 minus 12. This has become a by minus 15, b by minus 10 and 1 by minus 30. So we'll solve by first and the third part. A by minus 15 is equal to 1 by minus 30. By alternando, minus 15 by minus 30, a has come as 1 by 2. सेकेंड और थर्ड पार्ट को सॉल्व करते हैं. b by minus 10 is equal to 1 by minus 30. अगेन
by alternando minus 10 by minus 30, and B has come as 1 by 3. But we need not to find the value of A and B. Here we wanted to find out the value of X and Y. So we'll put the values of A and B again back. Putting the values back. Putting the values of A and B back. This has come as 1 by root x is equal to A is 1 by 2. So by doing reciprocal, it will come as under root x is equal to 2. फिर by squaring both sides, इसका square करेंगे under root x square 2 का square. This square is cancelled with root and the value of x has come as 4. Similarly, 1 by root y is equal to 1 by 3, and by doing reciprocal, under root y will be 3. Same here by squaring both sides. If I do the square, y will come as 9. So x is equal to 4 and y is equal to 9 is your answer. So one example. Now I'll take some examples from the statement sums. They are very, very important. Two questions. One is related to upstream, downstream, and one is related to time and work. Question number 2 has 3 parts of exercise 3.6. Will have all the 3 parts of question number 2. Question number 2, first part, it is related to the concept of downstream and upstream. First of all, we'll understand here what is this downstream and upstream. भाई stream का मतलब है एक नदी. अब ऊपर से नीचे की तरफ नदी बह रही है, ये इसका वाटर फ्लो है, फ्लो ऑफ वाटर. अब मान लीजिए इफ यू आर रोइंग अ बोट, आप एक नाव से इस नदी के पानी में चलना चाहते हैं, तो देयर आर 2 वेज. या तो आप पानी के विपरीत दिशा में जाएंगे, मींस इफ यू विल गो ऑपोजिट टू द फ्लो ऑफ वाटर, या यू विल गो इन द डायरेक्शन ऑफ द फ्लो ऑफ वाटर. सो अगर मैं ऑपोजिट टू फ्लो ऑफ वाटर जाएं, दैट इज कॉल्ड अपस्ट्रीम, यानी नदी में ऊपर की तरफ जा रहे हैं. इफ इन द डायरेक्शन ऑफ फ्लो, इट मीन्स वी आर गोइंग डाउनस्ट्रीम. अब इस चीज में एक और बात ध्यान रखनी है आपको. व्हेन यू आर गोइंग अपस्ट्रीम, सपोज योर बोट is going upstream. If your boat is going upstream, so जो इसकी स्पीड है नॉर्मली, यानी रुके हुए पानी में, स्टैंडिंग वाटर में जो भी स्पीड होगी, अब जब ये अपस्ट्रीम जाएगी तो इसको पानी का बहाव इसकी स्पीड को कम करेगा. मींस अपस्ट्रीम में स्पीड ऑफ बोट लेस हो जाएगी, कम होगी. और जब डाउनस्ट्रीम यानी नीचे की तरफ आ रहे होंगे इसी बोट से, तो एक तो पानी आपको प्रेशर दे रहा है और एक उसकी अपनी स्पीड है. सो स्पीड डाउनस्ट्रीम विल बी मोर, स्पीड ऑफ बोट विल बी मोर. यह बात आपने माइंड में सेटल रखनी है. दूसरी चीज, आपके पास दो चीजें, यहां पे हम बात कर रहे हैं सिर्फ स्पीड की, तो आपको यहां पर इन 2 स्पीड्स के बारे में पता होना चाहिए. पहला कि स्पीड ऑफ द बोट इन स्टिल वाटर क्या है, और व्हाट इज द स्पीड ऑफ करंट. अगर नहीं दे रखा है तो यू विल सपोज, अगर दे रखा है तो यू विल यूज. तो आप इन क्वेश्चंस को, यानी किस तरीके से अपस्ट्रीम एंड डाउनस्ट्रीम के क्वेश्चंस को करेंगे, मैं वो अपस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम क्वेश्चंस आपके साथ करते हैं. आप एक्सरसाइज 3.6 का क्वेश्चन नंबर 2 फर्स्ट पार्ट ले सकते हैं.
एक रितु लड़की है 20 किलोमीटर्स 2 आवर्स में, 20 किलोमीटर्स 2 आवर्स के अंदर वो डाउनस्ट्रीम क्वेश्चन यू कैन रीड इट आउट, एंड अपस्ट्रीम 4 किलोमीटर्स इन 2 आवर, यह है अपस्ट्रीम। और क्वेश्चन में पूछा गया है फाइंड द स्पीड ऑफ द रोइंग इन स्टिल वाटर, यानी बोट को रो करने की स्पीड स्टिल वाटर में कितनी है, और व्हाट इज द स्पीड ऑफ करंट। करंट मींस पानी, बहने वाली चीज को करंट कहा जाता है। तो हम सपोज करते हैं लेट द स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर, यानी रुके हुए पानी में उसकी स्पीड मान लेते हैं कितनी है, x किलोमीटर पर आवर, एंड लेट द स्पीड ऑफ करंट, यानी पानी की स्पीड क्या है, वो है y किलोमीटर पर आवर। So what will be speed of boat upstream? Speed of boat upstream. अब याद रखिए अपस्ट्रीम यानी ऊपर जा रही है बोट तो पानी उसको रोक रहा है, यानी स्पीड कम होगी। कितनी कम होगी भाई, ये इसकी स्पीड थी, ये पानी ने उसको रोका, तो ये होगी स्पीड अपस्ट्रीम किलोमीटर पर आवर। एंड स्पीड ऑफ बोट डाउनस्ट्रीम कितनी होगी, अब ये तो है स्पीड ऑफ बोट स्टिल वाटर में, और पानी ने उसको और धक्का दिया यानी ऐड हुआ, तो ये होगी स्पीड डाउनस्ट्रीम। अब क्वेश्चन पर चलते हैं, ये डाउनस्ट्रीम का केस दे रखा है, ये है डिस्टेंस, ये है टाइम और ये है स्पीड। आपकी मर्जी है आप किस तरीके से इसको करना चाहते हैं, बिकॉज द फॉर्मूलाज आर डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, एंड टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय स्पीड। आप इन तीनों में से कोई भी फॉर्मूला यूज करके इस क्वेश्चन को कर सकते हो। सो व्हाट आई विल डू, मैं इसको, ये स्पीड है ये डिस्टेंस है, मैं इसको फाइंड आउट कर रहा हूं, टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय स्पीड से। तो फर्स्ट केस के अंदर क्या आएगा, टाइम इज 2 आवर्स, डिस्टेंस इज 20 एंड स्पीड इज x माइनस डाउनस्ट्रीम की स्पीड x प्लस y। सॉल्व करें, क्रॉस मल्टीप्लाइंग, ट्वाइस ऑफ x प्लस y इज इक्वल टू 20, x प्लस y इज इक्वल टू 20 बाई 2 दैट इज 10। तो एक इक्वेशन आ गई आपके पास, x प्लस y इज इक्वल टू 10। अब दूसरी बात करते हैं, उसमें भी टाइम 2 आवर्स है, डिस्टेंस है 4 किलोमीटर और स्पीड है x माइनस वाई। क्रॉस मल्टीप्लाई, ट्वाइस ऑफ x माइनस वाई इज इक्वल टू 4, x माइनस वाई इज इक्वल टू 4 बाय 2, यानी द सेकेंड इक्वेशन विल बी x माइनस वाई इज इक्वल टू 2। अब ये जो है क्वेश्चन, इट इज इजियर बाय एलिमिनेशन मेथड, जस्ट ऐड कर देते हैं, एडिंग you'll get 2x is equal to 12 and x is equal to 12 by 2, x is equal to 6. I'll put the value of x either in equation number 1 or in 2. So this is 6 plus y is equal to 10 and y is equal to 10 minus 6, y is equal to 2. तो आपने आंसर क्या लिखना है, स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर कितनी है भाई, 6 किलोमीटर पर आवर, एंड स्पीड ऑफ करंट कितनी है भाई, 2 किलोमीटर पर आवर। सो 6 एंड 2, 6 किलोमीटर पर आवर, सॉरी यहां पर ये गलती से ये आ गया 4, ये गलती से लिखा गया भाई, ये है 4 किलोमीटर पर आवर। आई होप इट इज क्लियर, क्योंकि 10 माइनस 6 इज 4। सो ये हो गया आपके पास द क्वेश्चन रिलेटेड टू अपस्ट्रीम एंड डाउनस्ट्रीम। अब जो अगला कंसेप्ट हम आपके साथ डिस्कस करेंगे वो है टाइम एंड वर्क से रिलेटेड। टाइम एंड वर्क के बारे में एक खास बात याद रखिए, जब भी दो इक्वेशंस आ रही होंगी, आपकी स्टेटमेंट से आपको क्लियर हो जाएगा कि ये टाइम एंड वर्क से रिलेटेड है,
चाहे किसी भी चैप्टर में हो वो हमेशा याद रखिए यहां पर वर्क प्लस वर्क इज इक्वल टू वर्क आएगा। कभी भी टाइम प्लस टाइम इज इक्वल टू टाइम नहीं आएगा। जैसे पिछले क्वेश्चन में हमने क्या किया था, हमने किया था टाइम इज इक्वल टू टाइम, सम टाइम इज इक्वल टू टाइम 1 प्लस टाइम 2, ये भी कर सकते हैं। बट टाइम एंड वर्क के केस में आप कभी भी टाइम इज इक्वल टू टाइम 1 प्लस टाइम 2 नहीं लेंगे। हमेशा वर्क 1 प्लस वर्क 2 इज इक्वल टू टोटल वर्क। यानी ये कंसेप्ट आपने अपने माइंड में सेटल रखना है, क्योंकि देखिए टाइम एंड वर्क के अंदर ये है इनवर्सली प्रोपोर्शनल। वर्क और टाइम इनवर्सली प्रोपोर्शनल है एक दूसरे के। तो वर्क होता है 1 अपॉन टाइम और टाइम होता है 1 अपॉन वर्क। हमेशा याद रखिए इस तरीके से ये काम चलता है। तो जो क्वेश्चन नंबर सेकंड पार्ट हम सॉल्व करने वाले हैं, स्टेटमेंट आई एम होपफुल कि आप देख लेंगे। मैं सिर्फ आपको स्टेटमेंट समझा देता हूं कि भाई 2 वुमेन और 5 मैन, 2 वुमेन plus 5 men can do a piece of work in 4 days. In 4 days. ये पहली बात बताई है इन्होंने। फिर उन्होंने बताया हमारे को 3 women and 6 men. 3 women and 6 men कितने दिनों के अंदर इस काम को कंप्लीट कर लेते हैं? They can complete this work in 3 days. 3 दिनों में वो इस काम को खत्म कर लेते हैं। कहता है फाइंड अकेला आदमी 1 मैन कैन कंप्लीट इन हाउ मेनी डेज और 1 वुमेन इन हाउ मेनी डेज। तो जो पूछा है वही हम सपोज करते हैं। लेट 1 मैन कैन डू वर्क इन x डेज एंड लेट 1 वुमेन कैन डू वर्क इन y डेज। तो जो चीज पूछी जाती है वही हम सपोज कर लेते हैं। 99% क्वेश्चंस के अंदर हमने ऐसा ही किया है। तो एक आदमी x डेज में कर सकता है, एक महिला y डेज में। तो 1 मेंस 1 डेज वर्क विल बी इक्वल टू 1 बाय x एंड 1 वुमेन्स 1 डेज वर्क विल बी 1 बाय y। तो ये वर्क आ गया। एज आई टोल्ड यू कि यहां पर हम क्या करेंगे, वर्क प्लस वर्क इज इक्वल टू वर्क के साथ बात करेंगे। अब 2 वुमेन और 5 मैन की बात हो रही है, तो इट मींस 2 वुमेन प्लस 5 मैन कैन कंप्लीट द वर्क। अब मैंने वर्क 1 प्लस वर्क 2 इज इक्वल टू वर्क आएगा, बट यहां पे डेज दे रखा है, तो इसको वर्क में कंप्लीट कर कन्वर्ट कैसे करेंगे? इट विल बी 1 बाय 4। तो ये भी वर्क हो गया। सेकेंड केस, सेकेंड कंडीशन इज दिस, 3 वुमेन प्लस 6 men कैन कंप्लीट इन हाउ मेनी डेज? 3 तो यानी वर्क में कंप्लीट करा जाएगा 1 बाय 3। अब ये ध्यान करिए, जैसा क्वेश्चन हमने पहले किया था, हम यहां पर पुट करेंगे लेट 1 बाय y इज इक्वल टू a, लेट 1 बाय y इज इक्वल टू a, 1 बाय x इज इक्वल टू b। सो इक्वेशंस क्या बनी आपके पास? ये बन गई 2a प्लस 5b इज इक्वल टू 1 बाय 4। ये बन गई आपके पास 3a प्लस 6b इज 1 बाय 3। सो इस इक्वेशन को 3 से और इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दें, सो इट विल बिकम 6a प्लस 15b इज इक्वल टू 3 बाय 4। 6a प्लस 12b is 2 by 3 and then subtracting। अब इसको सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, माइनस माइनस माइनस, एलिमिनेशन मेथड का यूज कर रहे हैं। सो दिस हैज कम 3b is equal to 3 by 4 minus 2 by 3। LCM of 4 and 3 is 12, so 3b is equal to 12, 9 minus 8, 3b is equal to 1 by 12 and b is equal to 1 by 3 into 12, so b is equal to 1 by 36।
अब किस इक्वेशन में पुट करना चाहिए, इसमें या इसमें? ये आसान है क्योंकि 6 से कैंसिल होता है, सो विल पुट इट इन सेकेंड इक्वेशन। सो ये आ गया आपके पास 3a प्लस 6 इंटू 1/36 1/3। 3a is equal to 1/3 minus 1/6. LCM will be 6. LCM आ गया आपके पास 3a is equal to 6, 2 minus 1, 3a is equal to 1/6, a is equal to 1/18। लेकिन हमें a और b की वैल्यू नहीं चाहिए थी, हमें क्या चाहिए था, x और y की। तो यहां पर वैल्यू पुट करते हैं, तो ये क्या आएगा, 1/y is equal to a. What is the value of a? 1/18. So y is equal to 18 और 1/x is equal to b. b was 1/36, x is equal to 36. So how I will write down the answer? y कौन था, वैल्यू ऑफ y कौन थी, वन वुमेन कितने दिनों में कर सकती है, 18 डेज में, और वन मैन कितने दिनों में करेगा, 36 डेज में उसी वर्क को करेगा। आई होप आंसर कैसे लिखना है ये क्लियर है आपको। ओके, सो द लास्ट पार्ट ऑफ दिस कि स्पीड, डिस्टेंस और टाइम से रिलेटेड एक और क्वेश्चन है। अब बाकी आपने प्रैक्टिस करनी है, यू विल फाइंड अ लॉट ऑफ क्वेश्चंस ऑन नेट। आप बहुत सारे क्वेश्चंस नेट के ऊपर फाइंड आउट कर सकते हैं। यू कैन राइट डाउन टाइम एंड वर्क से रिलेटेड, यू कैन सर्च दोज क्वेश्चंस फ्रॉम वेब कि टाइम एंड वर्क से रिलेटेड, और या फिर आप स्पीड, डिस्टेंस एंड टाइम से रिलेटेड क्वेश्चंस कर सकते हो। Ruhi travels 300 kilometers to her home, partially by train and partially by bus. Total distance is 300 किलोमीटर। भाई कुछ वो ट्रेन से ट्रेवल करती है और कुछ वो बस से ट्रेवल करती है। सो ट्रेन और बस, आप कई बार सोचते होंगे कि क्या सर जी हम फेयर नोटबुक में या व्हेन द टाइम ऑफ एग्जामिनेशन ऐसे लिख सकते हैं, कोई नहीं रोकने वाला भाई, आपका क्वेश्चन है जैसे मर्जी लिखो, आपने अपनी अंडरस्टैंडिंग डेवलप करनी है। आपको कोई फर्क नहीं पड़ता कि भाई किसी को कैसे समझ में आता है, पहले आप अपनी अंडरस्टैंडिंग डेवलप कीजिए और फिर अकॉर्डिंगली उसको आगे सॉल्व कीजिए। अगर आपको अंडरस्टैंडिंग डेवलप करने के लिए फेयर में लिखना चाहते हो, राइट इट इन फेयर, रफ में लिख करके करना चाहते हो और फिर उसको सॉल्व करते हुए फेयर में ले जाना चाहते हो, आपकी मर्जी है, कोई रोकने वाला नहीं है। सो पहले केस में, पहली कंडीशन में क्या कहता है, वो कहता है अगर 100 किलोमीटर्स पर शी टेक्स 4 आवर्स। पहला केस है, टाइम दे दिया है आपको 4 आवर्स, पहले केस के अंदर 4 घंटे लेते हैं। शी टेक्स 4 आवर्स इफ शी ट्रेवल 60 किलोमीटर बाय ट्रेन। 60 किलोमीटर बाय ट्रेन, भाई 60 किलोमीटर अगर ट्रेन से चली तो बस से कितना किलोमीटर चलेगी भाई, 300 माइनस 60 यानी 240 किलोमीटर बाय बस, पहले केस के अंदर। और सेकंड केस के अंदर कहता है अगर शी ट्रेवल्स 100 किलोमीटर बाय ट्रेन, अब ट्रेन से चले वो 100 किलोमीटर तो बस से कितना चलेगी भाई, पक्की बात है 200 किलोमीटर। तो कहता है कितना टाइम लेती है, शी टेक्स 10 मिनट्स लॉन्गर, 10 मिनट ज्यादा, तो टाइम लगा 4 आवर्स 10 मिनट्स। ध्यान रखिए इस बात को, 10 मिनट्स लॉन्गर, उसने ये नहीं कहा 10 मिनट लगे, 10 मिनट में कोई आपको अंदाजा है 300 किलोमीटर पहुंच सकता है। तो यहां पर कई बार स्टूडेंट्स गलती कर जाते हैं, भाई 10 मिनट में नहीं पहुंच सकता कोई भी ट्रेन और बस से जाकर के 300 किलोमीटर। तो अब उसने कहा फाइंड द स्पीड ऑफ द बस एंड दैट ऑफ ट्रेन रिस्पेक्टिवली। तो हमारा काम यही है, लेट स्पीड ऑफ ट्रेन मान लेते हैं कितनी है, x किलोमीटर पर आवर, एंड लेट स्पीड ऑफ बस मान लेते हैं y किलोमीटर पर आवर। सो केस 1, पहले केस में, अब यह है टाइम, टाइम होता है डिस्टेंस बाय स्पीड, तो डिस्टेंस बाय स्पीड प्लस 240 बाय y इज इक्वल टू 4। केस 2, दैट इज 100 बाय x प्लस 200 बाय y
अब 4 आवर 10 मिनट, इसको अगर हम आवर्स में कन्वर्ट करें तो क्या बनेगा, 10/60, 4 प्लस 1/6, 6, 24 प्लस 25/6। तो आप इसको आवर्स में ही रखें क्योंकि ये दोनों किसमें हैं, आवर्स में। तो ये आपके पास दो इक्वेशंस आ गई और आगे आपको मालूम है कि हम 1/x को a और 1/y को b पुट करते हुए चलेंगे। तो लेट्स सॉल्व दिस टू इक्वेशंस। लेट 1/x is equal to a, 1/y is equal to b, 60a 240b is equal to 4, 100a plus 200b is equal to 25/6। So आप कौन से मेथड से इसको करना चाहते हैं आपकी मर्जी है। मैं आपको देखो दो मेथड्स हमने डिस्कस कर लिए हैं। सो आई एम मूविंग टू दी थर्ड, यानी सब्स्टिट्यूशन से आपको ये सिखा रहा हूं। तो सब्स्टिट्यूशन से करें तो पहली इक्वेशन उठाई, 60a is equal to 4 minus 240b and a is equal to 4 minus 240b by 60. 100 into 4 minus 240b by 60 plus 200b is equal to 25/6. 1 0 1 0, 2 3s are 2 5s are 5 4s are minus 0.2, 1200b by 3 plus 200b is equal to 25/6. LCM is 3. 20 minus 1200b plus 600b is equal to 25/6. 20 minus 600b by 3 is equal to 20/6. 3 1s are 3 2s are. Now cross multiply. That comes 2 into 20 minus 600b is equal to 25. 40 minus 1200b is equal to 25. 40 minus 25 is equal to 1200b. 15 by 1200 is equal to b. 1/80 is equal to b. b की वैल्यू वापस a में पुट करते हैं। तो a will be 4 minus 240 into 1/80 by 60. 4 minus 3 is 1, a is equal to 1/60. अब a और b की वैल्यू पता चल गई है। हमने 1/x को a लिया था, so 1/x is equal to 1/60. x is equal to 60 kilometers per hour. 1/y is equal to 1/80. y is equal to 80 kilometers per hour. अब आंसर में क्या लिखेंगे, स्पीड ऑफ द ट्रेन इज 60 किलोमीटर पर आवर एंड स्पीड ऑफ द बस इज 80 किलोमीटर पर आवर। सो हियर एक्सरसाइज 3.6 इज कंप्लीटेड। सो अगर फिर भी आपको कोई बात नहीं समझ में आती है, यू कैन आस्क मी, और आप अपना कोई भी कमेंट लिख करके भेज सकते हैं, कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हैं। टिल देन, थैंक यू वेरी मच।